कानूनी दस्तावेज कैसे तैयार करें? हाउ टू ड्राफ्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट। एक कानूनी दस्तावेज दो या अधिक पक्षों के लिए या के बीच हुए सौदे या समझौते एग्रीमेंट की शर्तों, अधिकारों और दायित्वों का स्पष्ट विवरण होता है। इसे तैयार करने के लिए निम्नलिखित 10 मुख्य चरणों का पालन करें। टाइटल: दस्तावेज का ऐसा शीर्षक रखें जो संक्षेप में उसके उद्देश्य को स्पष्ट करे। उदाहरण: सेल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। पक्षों की पहचान यानी पार्टीज टू दी एग्रीमेंट। सभी पक्षों, लोगों, कंपनियों की पूरी जानकारी दें। नाम, पता, पिता पति का नाम, पता घरेलू या कार्यालय, उम्र, कंपनी हो तो पंजीकरण की तारीख और विवरण। लेन देन का विवरण, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। दस्तावेज में यह स्पष्ट करें कि कौन सा सौदा या समझौता हो रहा है, क्या बेचा जा रहा है, किराए पर क्या दिया जा रहा है या सेवा प्रदान की जा रही है। कंसिडरेशन: सौदे में कितनी राशि या सेवा सामान या आदान प्रदान हो रहा है यह स्पष्ट करें। उदाहरण: पार्टी ए पार्टी बी को 1 लाख का भुगतान करेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस: समझौतों की सभी शर्तों और नियमों को विस्तार से लिखें। किसकी क्या जिम्मेदारी है, समय सीमा, भुगतान शर्तें, दंड या उल्लंघन की स्थिति में क्या होगा। भाषा स्पष्ट, सीधी और अस्पष्टता रहित होनी चाहिए। सिग्नेचर एंड सील: दस्तावेज के अंत में सभी पक्षों के हस्ताक्षर, तारीख और स्थान का उल्लेख करें। आवश्यक हो तो कंपनी की मोहर या स्टैंप लगाएं। विटनेसेस: कई दस्तावेजों के लिए 1 या 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। गवाह स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए जो पक्ष ना हो। गवाह का नाम, पता और हस्ताक्षर भी जोड़ें। स्टैंप पेपर: जिस राज्य में दस्तावेज बन रहा है वहाँ के नियमों के अनुसार स्टैंप पेपर का उपयोग करें। सही मूल्य का स्टैंप पेपर लें। रजिस्ट्रेशन: यदि दस्तावेज की पंजीकृत करना आवश्यक हो तो उसे निश्चित समय में संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें। कई मामलों में नोटरी की भी आवश्यकता होती है। मेक कॉपी: सभी पक्षों के लिए आवश्यक संख्या में प्रतियां बनवाएं यानी कॉपीज बनवाएं। यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक प्रति स्टैंप पेपर पर होनी चाहिए। हाउ टू ड्राफ्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट। 10 essential steps. A legal document formalizes a transaction, clearly stating the terms, conditions, rights, and obligations agreed upon by the parties. Here is how to draft one. First, choose an appropriate title. Select a clear, descriptive title that reflects the nature of the document. Examples: sales agreement, lease deed, employment contract, loan agreement. Second step, identify the parties. List all parties involved, including full name, father's or husband name, residential or business address, age if individuals, date of incorporation, registration details if companies. Role in transactions, example: buyer, seller, employer, employee. Third step, describe the transaction. Clearly outline the nature of the agreement or transaction. What is being bought, sold, rented, or agreed upon. What is the purpose of the document? Step 4. Mention consideration. State the consideration, that is money, goods, services involved.
This establishes the mutual obligation of the parties. Example, Party A agrees to pay 1 lakh rupees to Party B for the purchase of. Step 5. Outline terms and conditions. List all terms and conditions precisely, rights and duties of each party, timeline or deadline, delivery or performance obligations, penalties or breach clauses. Use clear, unambiguous language to avoid misinterpretation. Step 6. Signatures and execution. Include a section for signature of all parties, date and place of signing, seal or stamp if applicable. Witness. Step 7. Witnesses. If required, get the document attested by independent witnesses. Witnesses should not be related to any party. Include names, addresses, and signatures of witnesses. Step 8. Stamp paper. Use a stamp paper of appropriate value as per local state laws. Ensure it matches the document type and value of the transaction. Step 9. Registration, if required. Present the document for registration before the appropriate authority. Must be done within the prescribed time. Notarization may also be required in some cases. Step 10. Make copies. Prepare required number of copies. Use stamp paper where necessary. Give copies to all parties and retain one for legal records. Types of agreements or contracts. Business agreements. एक्विजिशन एग्रीमेंट, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी या उसके हिस्से को खरीदती है। इस समझौते में लेन देन की शर्तें, कीमत और वैधानिक जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। एजेंसी एग्रीमेंट, जब एक पक्ष एजेंट दूसरे पक्ष प्रिंसिपल की ओर से काम करता है। एजेंट के अधिकार, जिम्मेदारियां और कमीशन का उल्लेख किया जाता है। एडवर्टाइजिंग एग्रीमेंट, कंपनियों और विज्ञापन एजेंसियों के बीच किया गया समझौता। इसमें प्रचार की शर्तें, माध्यम, समय सीमा, भुगतान शामिल होता है। कंसल्टेंसी एग्रीमेंट, जब कोई सलाहकार यानी कंसल्टेंट किसी कंपनी को पेशेवर सेवाएं देता है। कार्य का प्रकार, फीस, समय सीमा और गोपनीयता शर्तें शामिल होती हैं। कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, ठेकेदार और ग्राहक के बीच निर्माण कार्य के लिए किया गया समझौता। परियोजना की समय सीमा, लागत, सामग्री और गुणवत्ता मानकों की परिभाषित किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, जब एक कंपनी अपने उत्पादों को वितरित करने के लिए किसी वितरक को नियुक्त करती है। क्षेत्र, अधिकार, मूल्य निर्धारण और वितरण शर्तें शामिल होती हैं। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, ब्रांड मालिक और फ्रेंचाइजी के बीच किया गया समझौता। ब्रांड उपयोग, प्रशिक्षण शुल्क और संचालन नियम शामिल होते हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, विदेशी कंपनियों और स्थानीय कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम या तकनीकी सहयोग हेतु समझौता। पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, प्रबंधन और लाभ साझा करने की शर्तें होती हैं। हायर परचेज एग्रीमेंट, जब कोई वस्तु किश्तों में खरीदी जाती है और स्वामित्व
अंतिम भुगतान के बाद हस्तांतरित होता है। किस्तों की राशि, ब्याज और स्वामित्व की शर्तें दी जाती हैं। इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, निवेशक और कंपनी के बीच पूंजी निवेश से संबंधित समझौता। निवेश राशि, इक्विटी हिस्सेदारी, रिटर्न और निकासी की शर्तें शामिल होती हैं। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, दो या अधिक कंपनियों के बीच किसी विशेष परियोजना या व्यापार को मिलकर संचालित करने के लिए किया गया समझौता। पूंजी, लाभ, जोखिम और प्रबंधन का बंटवारा इसमें तय होता है। सर्विस एग्रीमेंट, जब कोई सेवा प्रदाता किसी कंपनी व्यक्ति को सेवाएं प्रदान करता है, कार्य का दायरा, शुल्क, समय सीमा और गोपनीयता की शर्तें शामिल होती हैं। शेयर होल्डर एग्रीमेंट, कंपनी के शेयरधारकों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला समझौता। वोटिंग अधिकार, लाभांश, शेयर ट्रांसफर आदि इसमें शामिल होते हैं। स्टॉक परचेज एग्रीमेंट, जब कोई पार्टी किसी कंपनी के शेयर खरीदती है, शेयर की संख्या, मूल्य, भुगतान शर्तें और कानूनी औपचारिकताएं निर्धारित की जाती हैं। सेल एग्रीमेंट, किसी वस्तु, संपत्ति या सेवा की बिक्री हेतु पक्षों के बीच समझौता। इसमें कीमत, डिलीवरी शर्तें और भुगतान का विवरण दिया जाता है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट, जब एक कंपनी अपनी तकनीक यानी टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनी को उपयोग करने देती है। लाइसेंस की शर्तें, उपयोग की सीमाएं और गोपनीयताएं शामिल होती हैं। एग्रीमेंट टू एक्ट एज टेक्निकल और मैनेजमेंट एडवाइज़र, जब कोई विशेषज्ञ कंपनी को तकनीकी या प्रबंधन सलाह देता है। सलाह की प्रकृति, समय अवधि और भुगतान की शर्तें शामिल होती हैं। एग्रीमेंट टू सप्लाई टेक्निकल नो हाउ, एक पक्ष दूसरे को अपना तकनीकी ज्ञान, नो हाउ के लिए सहमत होता है। प्रक्रिया, विवरण, शुल्क, परीक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल होते हैं। टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, दो पक्षों के बीच तकनीकी साझेदारी हेतु समझौता। इसमें तकनीकी सहायता, परीक्षण, उत्पादन प्रक्रिया आदि की शर्तें होती हैं। एग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड सोल सेलिंग एजेंट्स, निर्माता एक एजेंट को किसी क्षेत्र में अपने उत्पाद बेचने का एकाधिकार, एक्सक्लूसिव राइट देता है। अपॉइंटमेंट ऑफ सोल सेलिंग एजेंट्स बाय अ फॉरेन कंपनी, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में किसी एजेंट को अपने उत्पादों को विशेष बिक्री एजेंसी प्रदान करती है। एग्रीमेंट फॉर अंडरराइटिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, जब कोई अंडरराइटर कंपनी के सार्वजनिक निर्गम IPO में शेष बचे शेयरों को खरीदने के लिए सहमत होता है। एग्रीमेंट टू अंडरराइट डिबेंचर स्टॉक, अंडरराइटर डिबेंचर या ऋण पत्र जारी करने वाली कंपनी को आश्वस्त करता है कि वह उन्हें निवेशकों से भरवाने में मदद करेगा या स्वयं खरीदेगा। निष्कर्ष, ये सभी समझौते अलग अलग व्यावसायिक आवश्यकताओं और वित्तीय या तकनीकी साझेदारियां के अनुसार तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक में पारदर्शिता, कानूनी वैधता और स्पष्ट शर्तों का होना जरूरी है। थैंक यू।